احتجاجی مظاہرے کے حوالے سے اس روڈ کو بنائے، اس کے جو ذمہ داران ہیں اس سے ریکویسٹ لال جان جعفر صاحب سے ہم لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس پر جلد از جلد کام شروع۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اکبر جان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان امیج نیوز۔ آج جس جگہ میں موجود ہوں یہ جگہ ہے کوئٹہ پریس کلب۔ یہاں پر ڈسٹرکٹ مسخیل سے کچھ نوجوان آئے ہوئے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ احتجاج کس وجہ سے کر رہے ہیں۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ یار سب سے پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن کرائیں اور دوسرا آپ یہ بتائیں یہ احتجاج کس وجہ سے جاری ہے، آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ میرا نام عبدالجبار غوری ہے، میں مسخیل فلاحی تنظیم کا صدر ہوں۔ ہمارے بنیادی تین بہت بڑے مسائل ہیں اور مطالبات ہیں جو ہم کوئٹہ لے کر آئے ہیں۔ ہم مسخیل سے چل کر آئے، بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ پہنچے ہیں۔ یہاں پر احتجاجی مظاہرے کی شکل ہم لوگوں نے اختیار کر چکے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مطالبہ درگی شبوزی سے لے کر تونسے تک جو روڈ ہے جس پہ کام بالکل ناقص اور نامکمل اور بند پڑا ہوا ہے، ہمارا مطالبہ ہے وہاں پر دو پیکیجز، پہلے دو پیکیجز جو NLC کے پاس ہیں جس پر شروع سے کام ہی نہیں ہوا ہے، ہمارا مطالبہ ہے کہ اس پر جلد از جلد کام شروع کیا جائے ہمارا۔ اور اسی طرح کچھ پیکیجز پر کام شروع ہو رہا ہے جو بالکل سست-روی کا شکار ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کو بہت جلد تعمیر کیا جائے۔ اور اسی طرح جس پر کام ہو رہا ہے وہ ناقص بھی ہو رہا ہے، اس کا مٹیریل خراب ہے، وہاں پہ جو کام ہو رہا ہے اس کا تھوڑا سپرویژن کیا جائے۔ دوسرا ہمارا مطالبہ ہے کنگری سے مساخیل تک، جو کنگری مساخیل کی تحصیل ہے جو اہم مساخیل کا مین شاہراہ ہے، وہ 2017 سے ان کے پیسے بھی ریلیز ہو چکے ہیں۔ اس میں دو فیز ہیں، فیز 2 پہ کام ہو رہا ہے، بالکل ناقص کام ہو رہا ہے، اور فیز 1 پر کام بند پڑا ہے، پیسے آدھے سے زیادہ ریلیز ہو چکے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس روڈ پر جلد از جلد کام شروع کیا جائے فیز 1 پر، اور فیز 2 پر معیاری کام کیا جائے، لیکن اس پر کام بند پڑا ہے۔ ایک چھوٹا سا ان لوگوں نے ایک ایشو اٹھایا ہوا ہے، ہمارا مطالبہ ہے چیف سیکرٹری صاحب اور بینڈار کے سیکرٹری لال جان صاحب سے کہ آپ ایکٹیو بندے ہیں، اس پر بھی کام شروع کروائیں۔ جی آپ کا گلہ کس سے ہے؟ جو ٹھیکیدار ہیں ان سے ہے یا جو سیکٹریز وغیرہ ہیں، کس سے ہے آپ کا گلہ؟ ہمارا گلہ تو سب سے پہلے ہمارا چیف سیکرٹری صاحب سے گلہ ہے اور ہمارے نمائندگان سے گلہ ہے۔ یہاں پر ایک ہی بندہ ہے لال جان صاحب، وہ اپنے بس کے اطاعت کے مطابق کام کر رہا ہے لیکن ان کا ساتھ کوئی نہیں دے رہا ہے۔ جو یہاں پہ ٹھیکیدار حضرات ہیں وہ چیف سیکرٹری صاحب تک ان کا پہنچ ہے، وہ اس کو اپروچ کر لیتے ہیں، اسی طرح باقی جو نمائندگان ہیں ان کو اپروچ کر لیتے ہیں۔ ہمارا گلہ جو مین گلہ ہے ہمارے اپنے نمائندگان سے ہے اور حکام بالا سے ہے۔ لال جان صاحب سے ہمارا یہ ایک ریکویسٹ ہوگا اور مطالبہ بھی ہے اور ہمارا گلہ بھی ہے کہ سب پیکیجز پر آپ توجہ بھی دیں، جس طرح آپ نے توجہ دیا ہے پیکیج 5 یا 4 پر، اسی طرح باقی پیکیجز پر بھی آپ توجہ دیں، اور ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، انشاءاللہ آپ سے ہم بھی ساتھ لینے کے مطالبہ کرتے ہیں۔ بتائیں کہ کیا آپ کے مطالبات ہیں، کس وجہ سے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے، کیا مطالبات ہیں آپ کے؟ میں کون سا مطالبات آپ کے سامنے پیش کروں؟ ویسے تو بہت زیادہ ہے مسخیل میں، لیکن آپ جو مین ایشو ہے، میجر ایشو ہے، وہ کیا ہے، کس وجہ سے آپ لوگ احتجاج؟ میجر ایشو صرف لالن ہمارا مسخیل تو آپ کو پتا ہے مسائلستان ہے، تو ہم لوگوں نے صرف اس ٹائم جو ہے پچھلے دن IGFC آیا ہوا تھا، تو میں نے اس کو یہ ریکویسٹ کیا تھا، میں نے کہا یہ باقاعدہ مسئلے تو حل ہو جائیں گے، صرف آپ اس ٹائم ہمارے لیے یہ ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ہمارے یہ روڈوں پہ آپ اگر ایکشن لے لیں، وزیر اعلیٰ کو آپ ریکویسٹ کر لیں روڈوں کے حوالے سے۔ یہ روڈ جو ہے آپ کو پتا ہے توسا شبوزی سے لے کے ہمارے بلوچستان کا جو حدود ختم ہو رہا ہے 185 کلومیٹر ہے جو توسا سے ملتی ہے، اس روڈ پہ ہم لوگوں نے ایکشن لیا ہوا ہے۔ روڈ بالکل سست کام جاری ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، کچوے کے مانند جاری ہے، اور اسی کے بعد ہے جو مساخیل کنگری سے لے کر مساخیل تک 75 کلومیٹر ہے، فیز 1 ہے، فیز 2 ہے، اس پہ کام جاری ہے مگر نہ ہونے کے برابر جاری ہے۔ تو آج ہم نے سنا ہے کہ ایکسین بھی ٹرانسفر ہوا ہے،
ये नाजायज़ी हमारे साथ न किया जाए। हमारे बेंडार सेक्रेटरी से ये रिक्वेस्ट है, हमारे बेंडार एक्शन से ये रिक्वेस्ट है, एक्शन सॉरी मिनिस्टर से और कोर कमांडर से हैं, वज़ीर आला से हैं, हमारे IGFC से हैं कि ये इस काम पे थोड़ा सा खुदा इस पे तर्स का मुस्तकिल कौम पे, और अगर मसले में आपको बयान कर लूँ तो ये बयान इसमें रद्द हो जाएगा। नहीं, आपका गिला किससे है? अब अगर हम देखें इस टाइम पे जो सेक्रेटरी CNW हैं वो तो अब पिछले भी हमने सेक्रेटरी देखे काफ़ी सारे, वो तो बिल्कुल काम नहीं हो रहा था। अब अगर जिस टाइम से ये सेक्रेटरी आया है अब तो काम फिर भी हो तो रहा है ऐसा अभी तो हो रहा है वो, बिल्कुल मैं मानता हूँ। सेक्रेटरी हमारे डिस्ट्रिक्ट का है, डिस्ट्रिक्ट मुसाखिल का लालजान साहब है, काम कर रहा है, मगर काम सुस्त है। अभी फेज 1 पे काम नहीं जारी, फेज 2 पे काम नहीं है, फेज 3 पे नहीं, फेज 9 पे जारी है, जो उसी सेट पे लास्ट पे। हम कह रहे हैं सारे फेज पे एक अल्टीमेटम एक टाइम पे काम जारी हो, हमारा ये मुतालिबा है। बाज़ मुस्तकिल साहब, क्या मुस्तकिल के क्या इश्यूज़ हैं जिन वजह से आप वहाँ से आए हैं, यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है? क्या इशू है, क्या मेजर मसाइल हैं मुस्तकिल के? अगर आप ये पूछते कि मुस्तकिल में क्या इश्यूज़ नहीं है तो मैं बता देता कि ये चीज़ें नहीं। मुस्तकिल को मसाइल खेल का अगर नाम दिया जाए तो ये बेहतर रहेगा। मुस्तकिल में सबसे पहले तो तालीम का इशू जो मेन चीज़ है वो यही है, यही रीज़न है जिसकी वजह से हम बैकवर्ड हैं। अगर देखा जाए तो जो आज का ये सिलसिला मूवमेंट है ये इस वजह से है कि यहाँ हमने 2-3 ही मुतालबे रखे हैं, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। एक जो है ये लोरलाई से आगे जाते हुए शबोजी, फिर मुर्गा, इसी तरह मुस्तकिल को कवर करते हुए दुर्ग, फिर तौसा। एक तो ये रोड, इस मेन चीज़ यही है, इससे मुस्तकिल की सारी जो तरक्की है इसी से वाबस्ता है। अगर ये रोड यहाँ से गया, इस पर रखना ना डाला गया तो ये बहुत सारे हमारे मसाइल हल कर सकते हैं। इसी तरह फिर मुस्तकिल से संगर तक जो कि जोब तक ये सड़क टच करती है ना, ये 60 किलोमीटर का फासला है। अगर आप यहाँ से मुस्तकिल जाना शुरू कर दें, मुस्तकिल से संगर तक और फिर क्वेटा तक, क्वेटा आप पहले पहुँचेंगे, वहाँ बाद में पहुँचेंगे। मैंने तो ये एडवाइस दी है कि जो भी बंदा इस रास्ते से जाता हो ना वो पहले वसीयत कर ले, हो खुदा न खादा कुछ न कुछ हो जाए रास्ते में। एक ये इस पे काम ही नहीं हो रहा, बंद पड़ा हुआ है। इस दीगर रोडों पे तो कहीं कहीं पे कोई कैंप नज़र आ जाए, कोई एक आध स्केलेटर या डंपर, ये चीज़ें नज़र आ जाती हैं। इसमें तो सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। तीसरा हमारा मुतालिबा ये मुस्तकिल टू किंगरी जो कि पंजाब तक ये सड़क जाती है, पंजाब से लिंक करती है, ये भी तकरीबन 20-30 सालों से इसी ज़ेर मुरम्मत है। इसमें एक नदी है लुड़तंग, ये जब आती है बरसाती नाला, इसमें फिर हम ये करते हैं, ये ऐसा नदी है कि ये बुर्ज से आगे भी चली जाती है, इसमें पानी ज़्यादा आता है, एक तरह से इसमें तुग़यानी ज़्यादा आ जाती है, तो हमारा एक सिलसिला कट कर रह जाता है। एक्सपोर्ट का हुआ, इम्पोर्ट का हुआ, ये सारा आमद-ओ-रफ्त हमारी एक तरह से बंद हो जाती है। यहाँ तक लोग कहते हैं कि जो लोग उनके कहीं और वफात पा जाते हैं तो फिर वो कंधों पे या ट्रैक्टर में, ट्राली में डालकर दूसरी तरफ ले जाते हैं। अब इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि आप अपने लाश को, अपनी प्यारे की लाश को लेकर कंधों पे जा रहे होंगे पानी में, और इस जदीद दौर में। तो यही मसले मसाइल हमने यही 2-3 डिमांड रखी है। लेकिन मसला ये है, अब हमारे जो MPA साहिबान हैं या दूसरे जो सरदार साहिबान हैं, बाकी जो ठेकेदार हैं वो हमारे अपने ही लोग हैं, तो सबका सब काम वही खराब कर रहे हैं। तो आप लोगों ने मुस्तकिल में उनके खिलाफ कोई एहतजाज मुजाहरे किए हैं? या एक तो मुस्तकिल में ये कबायली रस्म रिवाज का आपने मेरे खिलाफ क्यों बात की, हालांकि जायज़ बात भी होगी, वहाँ मीडिया की भी इतनी रसाई नहीं है लोगों को, और फिर ये लोग अप्रोच करते हैं पुलिस वगैरह को। मैंने कई सहाफ़ियों को बेइज्जत होते हुए देखा है वहाँ सियासी लोगों के हाथों, और वो किसको बेचते हैं? हमें से वो लोग मुंतखब करते हैं कि आपने जाकर इसको बेइज्जत करना है। और मसला इन्हीं लोगों से है जो हमारे सरदार हैं, जो उलमा हैं, इस तरह के जो सियासी लोग हैं और ठेकेदार वगैरह, इनकी मिली भगत से कुछ हो रहा है, वरना ये ऐसा ना होता। दीगर लोग, हमारे दूर के लोग या पाकिस्तानी लोग जो जहाँ भी हों, वो तो फंड वगैरह दे देते हैं, मंजूरी दे देते हैं।
आगे हम ये खुर्द बुर्द इनका बाजार गर्म कर देते हैं तो फिर क्या? सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान जीतने के बाद कभी आए हैं मुसाखिल वापस? शायद वो भूल गए हों। उन्होंने कहा हमारे मुसाखिल एक ये आंख है मुसाखिल और बारकान ये है। शायद इस पे वो तिल बना हो या अंधा हो। यहाँ से आए तो नहीं है, लेकिन शुरू वो ये कह सकते हैं कि मुझे तो 1 साल हुआ है, कभी मैंने सुना नहीं है कि वो आए। मुसाखिल नहीं रहा है, मुसाखिल बल्कि मसाइलिस्तान बना हुआ है। मुसाखिल में कोई भी महकमा न कोई ऐसा डिपार्टमेंट आप देखेंगे जिसका या कोई अफसर वहां पे मौजूद हो या वहां पे उसका कोई हेड मौजूद हो। महीनों भर वहां पे सिर्फ अपनी तनख्वाह लेने के लिए हम उनका ज़ियारत करते हैं। मुसाखिल के मसाइल तो काफ़ी हैं। मुसाखिल के सबसे ज़्यादा जो तबाही का शिकार है वो उनकी रोडों के वजह से। मुसाखिल टू किंगरी रोड जो 2018 में मंजूर हुआ था, जिस पर काम 2018 के एंड में शुरू हुआ था, लेकिन इस पर हमें बहुत ही शकूक व शुबात हैं, बल्कि इंशाल्लाह हम सबूत भी पेश करेंगे कि इस पर बेतहाशा करप्शन की गई है। बेंडार का जो करप्ट एक्सेन है, उन्होंने ठेकेदारों को काम से करने से बहुत ही ज्यादा उनको पेमेंट पहले से दिया गया है। और मुसाखिल का जो रोड है किंगरी तक, इसका फेज 1 पर बिल्कुल काम बंद पड़ा है, जिसकी वजह से इलाके के लोग, ट्रांसपोर्टर हजरात बहुत ही अजियत का शिकार हैं। ये रोड 5-6 साल में नहीं बना। हम मुतालिबा करते हैं वज़ीर आला साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से और बेंडार के जो सेक्रेटरी हैं मोहतरम लालजान साहब, जो बहुत एक्टिव बंदा है, उससे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली सर इस पर आप नोटिस लें और खास कर ये जो करप्ट एक्सेन है इसका एहतसाब किया जाए। दूसरी बात, मुसाखिल टोकिंग और संगर जो रोड है उसके पैसे भी रिलीज हुए हैं, उसको जल्द अज जल्द टेंडर किया जाए। हमारा एक और भी अहम मुतालिबा दरगाह शबूजी से तोंसा तक जो रोड है, जो पूरे बलोचिस्तान का मसला है, सिर्फ मुसाखिल और शबूजी और मुर्गा किब्जी के अक़वाम का मसला नहीं है। आप अगर मैप में जी चेक कर लें तो यहाँ से अगर आप लोलाई से रवाना हो जाएं तो आप इस रोड पर रकड़ी तक पहुंचने से, जब आप रकड़ी तक पहुंचते हैं तो ये दूसरा जो रोड है मुर्गा शबोजी वाला, मुसाखिल वाला, यहाँ से अगर आप सफर करेंगे, ये रोड अगर ये करप्ट ठेकेदार हो, ये करप्ट इंतजामिया बना दे तो आप वहाँ पर तोंसे तक पहुंच सकते हैं। मतलब ये रोड इतना शॉर्टकट है, ये पूरा बलूचिस्तान की शारक समझा जाता है। इसको हम अगर इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम दे तो भी इंशाल्लाह हम गलत नहीं होंगे। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब से, खासकर इज़्ज़त-ए-माब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती साहब से और बेंडार के सेक्रेटरी साहब मोहतरम लालजान साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने इस पे एक्शन तो लिया है, लेकिन कुछ पेज पर, कुछ ही के पैकेजेस पर, यहाँ से दरगाह शबूजी से जो रोड शुरू होता है ये एनएलसी के पास है 2 पैकेज, तो इनको इस पर बिल्कुल काम शुरू ही नहीं हुआ है। हम रिक्वेस्ट करते हैं एनएलसी के ठेकेदार से कि इस पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए, नहीं तो हम प्लान बी पर भी जल्द से जल्द काम शुरू करेंगे। इसी तरह जो दूसरे पैकेजेस हैं जिसका ठेकेदार रोहिदाद साहब है, इससे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी का मसला है। हम जानते हैं सिक्योरिटी का मसला नहीं है यहाँ पर, अगर है तो डीसी मुसाखिल ने आपको कहा है कि मैं आपको सिक्योरिटी देता हूं, इलाके के लोगों ने आपको बोला है कि हम आपको सिक्योरिटी फराहम करते हैं, लेकिन आपका मन नहीं चाहता है कि मैं इस रोड पर काम कर लूं।
या शायद आपको कोई और लोग आपको रोड पे काम करने से रोक रहे हैं, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पैकेज 3 पर भी जल्द से जल्द काम शुरू करें। अगर आपको मसला है तो आप मुसाखेल की तरफ से काम शुरू करें, तब तक आपका सिक्योरिटी का भी मसला हल हो जाएगा। मुसाखेल में तो सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है आपके लिए। इसी तरह एक और ठेकेदार साहब है जो पैकेज 4 पे काम कर रहा है, जिसको एक मरतबा ब्लैकलिस्ट भी किया गया था, फिर शायद पता नहीं इसने कौन से दरवाजे खटखटाए। हाजी जरीफ साहब का मैं नाम तो नहीं लेना चाहता था, लेकिन मजबूरी है, आप अपने कामों को सही कर लो। नाजरीन, तो आप लोगों ने मुतालबात जान लिए हैं इन लोगों के। ये एक बहुत खुशाइंद बात है कि ये लोग एक पसमानदा डिस्ट्रिक्ट ज़िला मुसाखेल से चल के यहाँ पर आए हैं। उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और उनके बहुत सारे मसाइल थे। जो इनके मेजर इश्यूज़ थे वो रोड के थे। वहाँ उनको एक्सियन वगैरह और बाकी बहुत सारे ठेकेदारों से मसाइल थे। सबसे पहले तो हमें CNW के जो सेक्रेटरी साहब हैं लालजान जाफ़र साहब, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि पीछे हमने बहुत सारे चीफ सेक्रेटरीज़ भी आए हैं, हमारे अपने जो नुमाइंदगान हैं MPAs वो भी आए हैं। किसी ने भी इस रोड पे इतनी तवज्जो नहीं दी। जब से यही लालजान जाफ़र साहब आए हैं सेक्रेटरी CNW, उस टाइम से ये काम चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो अभी जो इनके मुतालबात थे उनमें ये भी था कि काम तो चल रहा है। लालजान साहब का शुक्रिया तो वो अदा कर रहे थे, लेकिन वो फिर भी कह रहे थे कि सुस्तरवी का शिकार है। लालजान साहब को आगे जो एक्सियन वगैरह हैं, ठेकेदार वगैरह हैं, वो काम नहीं कर रहा है, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो मेरी जो सेक्रेटरी हैं CNW के लालजान जाफ़र साहब और जो CM हैं वज़ीर सरफराज भुगटी साहब, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है मुसाखेल वो बहुत ही पसमानदगी का शिकार है। मतलब कुछ भी सहूलियात उधर नहीं है। अगर आप इस रोड पे एक्शन लें, ये रोड बन जाए तो वहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।